السلام علیکم فرینڈس، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم رمضان کی نفل نمازیں اور وظائف بتائیں گے، اور اس ویڈیو میں ہم پہلی شب، دوسری شب، شب قدر جو ہوتی ہیں 21، 23 اور 25، یہ 3 شب کے بارے میں آج ہم بتائیں گے۔ اس میں کون کون سی نفل نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے، اور یہ صبر و شکر اور عبادت کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک کی عبادت کا ثواب 70 درجہ زیادہ عطا ہوتا ہے۔ جو کوئی اپنے پروردگار کی عبادت کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرے گا، اس کی بڑی جزا خداوند تعالیٰ عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے، اس کی جو جزا ہوگی وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اس میں وظائف ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی پہلی شب، جب پہلی شب آئے گی رمضان کی، اس میں آپ کو عشاء کی نماز کے بعد ایک بار آپ کو سورہ فتح پڑھنی پڑے گی۔ سورہ فتح پڑھنا کیا ہے؟ ایک بار بہت افضل ہے۔ اس کے بعد ماہ رمضان کی پہلی شب بعد نماز تہجد کی نماز جب آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو آسمان کی طرف منہ کر کے 12 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ دعا پڑھنے کیا بہت افضل ہے۔ کیا ہے وہ دعا؟ یہ ہے: لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ پھر سے ایک بار پڑھ لیجئے: لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ ان وظائف کے پڑھنے والے کو بے شمار نعمتیں اللہ پاک کی طرف سے عطا کی جائیں گی۔ جو بھی یہ وظائف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ بہت بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوں گی۔ اس کے بعد ماہ رمضان المبارک میں روزانہ ہر نماز کے بعد اس دعائے مغفرت کو 3 مرتبہ پڑھنا بہت ہی افضل ہے۔ یہ دعا ہے، اس کو ہر نماز کے بعد پڑھنا کیا بہت افضل ہے۔ چلیے پڑھ لیجئے میرے ساتھ۔ اب رمضان آئے گا تو اس میں آپ کو یہ پڑھنی ہے، جتنی میں نمازیں بتا رہا ہوں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الیہ توبۃ عبد ظالم لا یملک نفسہ ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ پھر سے پڑھ لیجئے: استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الیہ توبۃ عبد ظالم لا یملک نفسہ ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ اب رمضان شریف میں ہر نماز عشاء کے بعد روزانہ 3 مرتبہ کلمہ طیب پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں کیا ہے؟ پہلی مرتبہ پڑھنے سے گناہوں کی مغفرت ہوگی، دوسری دفعہ پڑھنے سے دوزخ سے آزاد ہوگا، تیسری بار پڑھنے سے کیا ہوگا؟ جنت کا مستحق ہوگا۔ اس کے بعد پہلی شب قدر، حضور انور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے جو مرد یا عورت یہ خواہش کرے کہ میری قبر نور کی روشنی سے منور، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ تو اسے چاہیے کہ ماہ رمضان کی شب قدر میں کثرت کے ساتھ عبادت الہی بجا لائے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ عبادت کرے، ٹھیک ہے، عبادت کرنا ہی ہوتا ہے، خوب عبادت کرے، تاکہ ان مبارک راتوں کی عبادت سے اللہ پاک اس کے نام اعمال سے برائیاں مٹا کر نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ شب قدر کی عبادت 70,000 شب کی عبادتوں سے افضل ہے۔ شب قدر کی جو عبادت ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ 70,000 شب سے کیا ہوتی ہے؟ افضل ہوتی ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نفل نماز کیا ہے؟ 21ویں شب، دیکھیے پہلے 21ویں شب ہوگی، طاق راتیں ہوتی ہیں، 21ویں، پھر 25، پھر 23، پھر 25، پھر کیا 27، پھر 29۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں ہم آپ کو 21، 23، 25 راتوں کی نفل نماز بتائیں گے۔ تو 21ویں شب کو 4 رکعت نماز آپ کو 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے سورہ قدر آپ کو ایک بار پڑھنی ہے، سورہ اخلاص آپ کو ایک بار پڑھنی ہے۔ سلام کے بعد آپ کو 70 بار درود پاک پڑھیں۔ پھر سے بتا دیتا ہوں، یہ آپ کو 21ویں شب کو کیا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنی ہے آپ کو، یا تہجد کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، جب بھی آپ تہجد کی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، ایک نیند دینے کے بعد، اس کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، صبح صادق سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اب 4 رکعت نماز آپ کو 2 سلام سے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں آپ کو الحمد کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جسے سورہ قدر کہتے ہیں، ایک بار پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص بھی آپ کو ایک بار پڑھنی ہے۔ سلام کے بعد آپ کو
70 मरतबा आपको दुरूद पाक पढ़ना है, जो भी आपको याद हो, दुरूद इब्राहिमी या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो भी दुआ याद हो। इसके बाद क्या, इंशाअल्लाह ताला इस नमाज के पढ़ने वाले के हक़ में फ़रिश्ते दुआ मग़फ़िरत करेंगे। ठीक है, इंशाअल्लाह इस नमाज के पढ़ने वाले को क्या करेंगे, फ़रिश्ते दुआ मग़फ़िरत करेंगे। इसके बाद क्या है, 21वीं शब को 2 रकात नमाज। देखिए अब ये जो मैंने बताया 4 रकात, इसके बाद फिर 2 रकात आपको पढ़नी है। हर रकात में आपको सूरह फ़ातिहा के सूरह क़द्र एक बार, सूरह इख़लास 3 मरतबा पढ़नी है। फिर से सुन लीजिए, चाहे दो, फिर उसके बाद 2 रकात पढ़नी है आपको नमाज। हर रकात में आपको अल्हम्दु के बाद सूरह क़द्र आपको एक बार पढ़नी है, और सूरह इख़लास यानी क़ुल हुवल्लाहु अहद भी आपको 3 बार पढ़नी है। सलाम के नमाज ख़त्म करके 70 मरतबा आपको इस्तिग़फ़ार पढ़नी है। इंशाअल्लाह ताला इस नमाज और शब क़द्र की बरकत से अल्लाह पाक इसकी बख्शिश फरमाएगा। तो आपको 70 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, 5वां कलमा जिसे कहते हैं, या अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये पढ़ सकते हैं। अब वज़ीफ़ा क्या है, इसमें वज़ीफ़ा भी हमें जानना ज़रूरी है। माह रमज़ान मुबारक की 21वीं शब को 21 मरतबा सूरह क़द्र पढ़ना भी बहुत अफ़ज़ल है। इन्ना अंज़लनाहु, मैं पढ़ देता हूँ, आप सुन लीजिए। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। ये आपको 21 बार पढ़नी है। इसके बाद जो है, इसमें दूसरा क्या है, दूसरे शब के बारे में बताते हैं थोड़ा, कि माह मुबारक की 23वीं शब, पहली क्या थी, 21 थी, दूसरी क्या है, 23 आती है। शब को 4 रकात नमाज 2 सलाम से पढ़ना है। हर रकात में सूरह फ़ातिहा के सूरह क़द्र एक बार, सूरह इख़लास 3 बार। ठीक है, सलाम के बाद आपको 70 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। बहुत आसान है ये कोई मुश्किल नहीं है। 4 रकात नमाज़ पढ़नी है 2 सलाम से। हर रकात में आपको अल्हम्दु के बाद सूरह क़द्र एक बार, सूरह इख़लास 3 बार पढ़नी है, और सलाम के बाद आपको 70 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। अब इसमें क्या है, इंशाअल्लाह ताला मग़फ़िरत गुनाह के लिए ये नमाज बहुत क्या है, अफ़ज़ल है। अब इसमें क्या है, 23वीं शब क़द्र को 8 रकात नमाज 4 सलाम से पढ़ना है। ठीक है, 4 सलाम 2 करके पढ़ना है। इसके बाद हर रकात में अल्हम्दु के बाद सूरह क़द्र एक बार पढ़नी है, और सूरह इख़लास एक बार पढ़नी है, और सलाम के बाद जो है कलमे तमजीद यानी सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये कहना है। तो ठीक है, तो 8 रकात नमाज आपको 4 सलाम से पढ़नी है। हर रकात में आपको अल्हम्दु के बाद इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र एक बार पढ़नी है, सूरह इख़लास भी एक बार पढ़नी है। सलाम के बाद जो है आपको कलमा तमजीद यानी सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये पढ़ना है आपको। अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करें, अल्लाह ताला इसके गुनाह मुआफ़ फरमा कर इंशाअल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाएगा। ठीक है, गुनाह माफ़ फरमाए, क्या फ़रमाएगा अल्लाह तबारक व तआला, मग़फ़िरत फ़रमाएगा। इसके बाद जो है मैं वज़ीफ़ा बताऊँगा इस शब का, और इसके बाद 25वीं शब के बारे में हम पढ़ें कौन कौन सी नफ़ल नमाज़ें उसमें पढ़ी जाती हैं। तो यहाँ देखिए वज़ीफ़ा क्या है, 23वीं शब को सूरह यासीन आपको एक बार पढ़नी है, सूरह रहमान एक बार पढ़नी, बहुत अफ़ज़ल है। तो जब वज़ीफ़ा क्या है, जब 23वीं शब को आप ये सारी नमाज़ें पढ़ लें, उसके बाद आपको बैठकर वज़ीफ़ा पढ़ना है। कौन सा वज़ीफ़ा, सूरह यासीन को आपको एक बार पढ़ना है, सूरह रहमान को एक बार पढ़ना है। इसके बाद मैं 25वीं तारीख़ की नफ़ल नमाज़ें बता देता हूँ। माह रमज़ान की 25वीं तारीख़ की शब क़द्र को 4 रकात नमाज आपको 2 सलाम से पढ़नी है, यानी 2 करके पढ़नी है। उसके बाद आपको सूरह फ़ातिहा के सूरह क़द्र आपको एक बार पढ़नी है। सूरह फ़ातिहा के बाद सूरह क़द्र एक बार, सूरह इख़लास क़ुल हुवल्लाहु अहद 5 मरतबा पढ़नी है। हर रकात में पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद सलाम के बाद आपको कलमा तय्यब 100 दफ़ा पढ़ना है। ठीक है, इसको मैं एक बार फिर बता देता हूँ। आपको 4 रकात नमाज 2 सलाम से पढ़नी है। हर नमाज में आपको अल्हम्दु के बाद सूरह क़द्र एक बार पढ़नी है, और सूरह इख़लास आपको 5 बार पढ़नी है, और सलाम के बाद आपको पहला कलमा 100 बार पढ़ना है। अब दरगाह रब्बुल इज़्ज़त से इंशाअल्लाह ताला बेशुमार इबादत का सवाब अता होगा। इसमें और भी है कि 25वीं शब को 4 रकात नमाज 2 सलाम से फिर पढ़नी है। हर रकात में आपको सूरह फ़ातिहा यानी अल्हम्दु के बाद सूरह क़द्र 3 बार, सूरह इख़लास 3 बार, सलाम के बाद आपको 70 दफ़ा इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। ये भी आसानी है उसी की तरह, बस इसमें ये बदल जाएगी, सूरत बदल जाएंगे। ये नमाज बख्शिश के लिए बहुत अफ़ज़ल है। क्या है, बख्शिश के लिए नमाज बहुत अफ़ज़ल है। और इसमें भी और फिर पढ़नी है 25 शब क़द्र को 2 रकात नमाज फिर पढ़नी है। हर रकात में अल्हम्दु के बाद सूरह फ़ातिहा के बाद सूरह क़द्र एक बार, और सूरह इख़लास
15 बार पढ़नी है, ठीक है। सूरह इखलास आपको 15 बार पढ़नी है, और सलाम के बाद आपको 70 दफ़ा कलिमा शहादत पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कलिमा शहादत आपको पढ़ना है। अब ये नमाज निजात अज़ाब क़ब्र के लिए बहुत अफजल है। क़ब्र के अज़ाब से निजात के लिए बहुत क्या है, ये अफजल है। अब इस रात का मैं कुछ वजीफ़ा बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप इस वीडियो को दोबारा से आप देखें जब रमज़ान आएगा या शाबान आएगा, ठीक है। ये आप देखिएगा दोबारा से। माह रमज़ान 25 शब को 7 मरतबा सूरह दुखान पढ़नी है। कितनी मरतबा? 7 मरतबा। इंशाअल्लाह ताला इस सूरह को पढ़ने के बाद अज़ाब क़ब्र से महफूज रहेगा। जो भी पढ़ेगा इंशाअल्लाह अज़ाब क़ब्र से क्या होगा? महफूज रहेगा। और क्या है, 25वीं शब क़द्र को 7 मरतबा क्या पढ़ना? सूरह फ़तह पढ़ना हर मर्द के लिए बहुत अफजल है। 2 वजीफ़े क्या हो गए? एक तो सूरह दुखान आपको 7 बार पढ़नी है, और सूरह फ़तह भी 7 मरतबा आपको पढ़नी है, बहुत अफजल है। अब अगली वीडियो में जो है चौथी शब के बारे में, यानी चौथी शब क्या हुई? 27वीं रात और 29वीं रात के बारे में हम बताएंगे। फिर इस दूसरा पार्ट क्या हुआ आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो है ज़िलक़ादा ज़िलहिज्जा की नमाज़ें हैं वो रह गई हैं, और मुहर्रम, ये हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको। अस्सलामु अलैकुम।